Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. And in this video, we are going to discuss the 45 days revision plan for the RBI Grade B 2025. This video has been created with the thought in mind that कि notification may come in around 45 days. तो उसी के हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया है और इट्स अ रिवीजन प्लान ओके, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि 45 डेज में पूरा का पूरा आरबीआई सिलेबस खत्म कर दो. दैट्स नॉट पॉसिबल. And for that I already shared a 120 days plan maybe 3 months before. ओके तो ये चीज ध्यान रखना है कि 45 डेज रिवीजन प्लान है ये, ना कि 45 डेज आप पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हो. सो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि यू शुड हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस, and by this plan you are about to revise your whole syllabus in the next 45 days by the time notification comes out. Second thing, you need to devote at least 4 to 5 hours on a daily basis. Those who are working, they may not get time on a daily basis, and to them I always say that you need to manage at least 35 to 40 hours on a weekly basis. Okay, आप अगर 30 आवर भी वीकली बेसिस मैनेज कर रहे हो, that would also be sufficient provided that you are doing it effectively, you are doing all the things required. जो भी आपसे जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप वो कर रहे हो तो ही एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा. ओके, I have already shared the Excel sheet of this whole plan on my Telegram, official Telegram channel, which is named as Brajesh Mohan. You can search @Brajesh Mohan on Telegram. You would find my Telegram channel. So let's get started. Based on this revision plan, I have launched a batch 3, RBI Grade B batch 3, for which details are over here, and the link would be shared in the description as well as in the first comment. Okay, so this particular course is a complete course for RBI Grade B phase 2. Along with that, I'm also providing you practice questions, chapter wise practice questions for quant, reasoning, English, as well as sectional test, mock test for phase 1 exam. I'm also covering your complete general awareness for phase 1 and phase 2 exam. So apart from quant, reasoning, English notes, as you can see that the video that you see, I'm covering each and everything. I'm providing you 1000+ questions for quant, reasoning, English, and that too high level of questions, the kind of questions that they ask in the exams. Okay, I'm also providing you chapter 1000+ chapter wise MCQs on finance and management. Weekly doubt sessions are conducted, mock tests are provided for phase 1 and phase 2, descriptive answer writing are done. So all such things are being provided in this particular course. Okay, so you can enroll in this batch 3 program. Link has been given in the description below. Apart from this, if you are already enrolled in some other program, then you can enroll in my answer writing program. It is one of the most sought after answer writing program because of the things that are offered in this program. So if you are already enrolled in some other program, so you can enroll in my answer writing, and this particular course will also provide you phase 1 and phase 2 mock test as well as general awareness magazines. Our all the current affairs magazines would be provided under this particular course. So link of this particular course is also in the description below. We have already started our answer writing plan, so you can enroll as soon as possible. So these are the chapters that are there in finance and management. Okay, so just pause the video and note it down that what are the chapters that you need to cover. In management, you will have to cover each and everything, like introduction in management, motivation, leadership, communication. All these 4 chapters are very important. You can say every year they have been asking descriptive questions from these 4 chapters, especially communication, leadership. Okay, they have been asking questions from these chapters every year. Even the introduction to management is also important, motivation is also important. These chapters are called, till here, are called OB and OD, organization behavior and organization development. I have bifurcated them in multiple chapters, but cumulatively these are called OB and OD, organization behavior and organization development. So they have been asking one or at least one descriptive question from these topics. Okay, like they have been asking questions, they had asked on emotional intelligence, conflict, personality. Okay, like big 5 model has been already asked. परसेप्शंस पर क्वेश्चंस पूछ चुका उन्होंने. तो ये सब चीज, जोहारी विंडो इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके,
So there are few concepts over there which are very important जो आपको करना पड़ेगा. So these are the chapters जो कि OB and OD के अंतर्गत है, और ये पहला 4 चैप्टर है जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है. Apart from that, the last chapters are ethics and corporate governance, another very important. तो आप अगर पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे मैनेजमेंट सिलेबस को अगर 3 टाइप्स में, 3 भाग में डिवाइड करते हो, 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, द पार्ट 1 वुड बी कॉल्ड एज introduction to management, motivation, leadership and communication. Okay, I would put all these in part 1. In the part 2 I would put OB and OD, and in part 3 I would put ethics and corporate governance. Okay, सब के सब important है, but most important are 1 and 3. In the 2 you can do selectively. Okay, आप डिस्क्रिप्टिव पर्पस से सेलेक्टिवली कर सकते हैं. यहाँ से हालांकि ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आप यहाँ से सेलेक्टिवली भी कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी आप जो यहाँ पर अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो. बट दीज चैप्टर्स नीड टू बी, दीज 4 चैप्टर्स नीड टू बी डन रियली वेल, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, डिस्क्रिप्टिव में भी काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से हर साल बन रहे हैं. ओके, देन कम्स द फाइनेंस. फाइनेंस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू उतना कुछ खास नहीं है, रिजर्व बैंक एंड इट्स functions, and 2A I have created a separate chapter in the Reserve Bank of India and its functions, which is the recent initiatives of RBI. RBI has been focusing too much on its own initiatives, on its own reports, speeches and everything. तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट सेगमेंट क्रिएट कर रखा है चैप्टर. जितने भी RBI की इनिशिएटिव, चाहे वो PIDF हो, ओके, चाहे वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो, या जो भी स्कीम्स हैं, वो सब के सब स्कीम्स यहाँ पर आपको कवर करने पड़ेंगे. लास्ट 4 to 5 इयर्स में जो भी स्कीम्स आए हुए हैं सब आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा. ओके, देन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर, इवन यू कैन रीड द फाइनेंशियल सेक्टर, डिफरेंट रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. हाउएवर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंक्लूड द चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. From here the objective could be asked, 1 or 2 objective, 1 marker could be asked. Okay, but the descriptive would be mostly asked, the descriptive would be mostly asked from these chapters that I have marked. Okay, even objective could be asked from these chapters, like they have asked on basics of derivatives. In 2024 they asked from basics of derivative, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वगैरह के बारे में उन्होंने पूछ लिया. तो नेक्स्ट उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में पूछ लेने हैं. उनको फाइनेंशियल मार्केट से काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस बन जाता है. तो ये सब चैप्टर जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इतने ही चैप्टर्स आपको करने हैं आपके फाइनेंस के लिए, राइट. चलो एक बार हम लोग पूरा का पूरा प्लान देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन कर रखा है. फाइनेंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स पोर्शन. फाइनेंस के लिए कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है लास्ट में. फिर मैनेजमेंट के भी चैप्टर्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं. अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको सेलेक्टिवली करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग इकोनॉमिक स्टैटिक क्वेश्चन इन अदर फेज 1 ऑब्जेक्टिव एंड फेज 2 ऑब्जेक्टिव. So from here they asked mostly descriptive question. Last year too they asked on growth versus sustainability. Okay, there was a 15 marker question on growth versus sustainability पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. काफी अच्छा क्वेश्चन था. उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक नोबेल लॉरेट हो, उनके स्टेटमेंट को यूज करके ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा गया था. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक ग्रोथ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 6 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उन्होंने ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, ये एक अच्छा कंसेप्ट भी अभी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है, उसमें एक रिलेशनशिप फाइंड की जा रही है कि क्यों जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरत है, इसके बारे में बात हो रही है. इससे पहले उन्होंने पॉवर्टी पर क्वेश्चन पूछ रखा है. दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड ऑन पॉवर्टी. दे में आस्क यू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट आल्सो. मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स उन्होंने ऑलरेडी पूछ रखे हैं. दे कैन आस्क यू अगेन. फिक्सल पॉलिसी पर फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब देखो, चेंजेज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मोस्ट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देखो, आपको पुराने याद नहीं करना है, 1991 वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब याद नहीं करना है. आपको यहाँ पर नई पॉलिसी याद करनी है कि भारत की स्टार्टअप पॉलिसी क्या बोलती है, हमारी एमएसएमई पॉलिसी क्या है. ओके, हाउ वी आर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. So those are the things that you need. Like recently industrial corridors were approved. Right now we are facing the rare earth material crisis because the China controls monopoly on rare earth material and they have blocked the export. तो इस कारण से क्या हो रहा है
कि एक तरह से यहाँ पर बड़ा सा इशू क्रिएट हो चुका है, राइट। तो ये चीजें आपको पढ़नी होती है कि जो एक तरह से इंडस्ट्रियल जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है भारत में, जो करंट इंडस्ट्रियल सिनेरियो है वो किस तरह का है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि आपको लीगेसी स्टैटिक वगैरह पूछा जाएगा कि हाँ भाई एमएमआरटीपी के बारे में बताओ कि जो मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी था एमआरटीपी, उसके बारे में बताओ। वो सब चीजें आपसे नहीं पूछेंगे वो लोग। अगर पूछेंगे तो वो 1 मार्कर में आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपको जो इवॉल्विंग सिनेरियो होता है इकोनॉमिक्स में, जो करंट में चीजें चल रही होती है, जैसे मैंने बोला ना कि ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी इज अ बिगर डिस्कशन दीज डेज एंड दैट्स व्हाई दे आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको करंट प्लस स्टैटिक को मिलाकर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जब भी आपको जो इकोनॉमिक्स से वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चेंजेस एंड जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला है तो ये चीजों पर आप ज्यादा फोकस करोगे। नोट्स में ये चीजें ऑलरेडी कवर की गई है। देन इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स लिंकेज। अब देखो इंडियन इकोनॉमी इट्स लिंकेज में क्या आता है कि यहां पर कैसा क्वेश्चन रह सकता है कि दे कैन आस्क यू अबाउट like what is the role of RBI in economic development, yeah, what is the role of banking sector in economic development, how fintech are growing and how they will help in economic development, yeah, what is the role of fintech in Indian economy। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये इकोनॉमिक्स में उसका क्या रोल है, इसके बारे में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही लिंकेज के बारे में जो बात है वो यही चैप्टर है। देन ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वही जो 1991 में हुआ था, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई गई थी मनमोहन सिंह सरकार के, मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ओके, तो उस नरसिम्हा राव सरकार में, तो वो सब चीज के बारे में पूछ सकते हैं आपको कि उसका अभी क्या हो गया कि अभी हम लोग जो उसके 30 ईयर्स या 40 ईयर्स 30, यस इट केम इन 1991। सो अभी उसके जो है ऑलरेडी हम लोगों ने 30 ईयर सेलिब्रेट किया था, और इस तरह से वो चीजें होती रहती है। तो उस पर जो किस तरह से उसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या था, हाउ मच अचीवमेंट वी हैव डन, या उसका क्या सिग्निफिकेंस था आज की इकोनॉमिक पॉलिसी में, या किस तरह से उसने शेप किया इंडियन इकोनॉमी को, इस तरह के क्वेश्चंस वहां से आपसे पूछ सकते हैं। देन देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आरबीआई के अंडर आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीट जो है वो आरबीआई क्रिएट करती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन देयर इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है। ऑलरेडी आरबीआई इस पर जो ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है 2023 वाले पेपर में, 2024 वाले में उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव पूछे थे डब्ल्यूटीओ पर। तो ये सब ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको फाइनेंस में बताऊं तो फाइनेंस में जो था, जो उन्होंने डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट है उस पर कई बार क्वेश्चन पूछते, बिकॉज डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक। लास्ट ईयर उन्होंने यूपीआई था, सेबी प्लस यूपीआई का कंसेप्ट मिलाकर जो सर्कुलर था सेबी का, उस पर उन्होंने पूछा। सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड कम अंडर द डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट, बिकॉज यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब जो भी आईएमपीएस जो भी है वो डिजिटल पेमेंट है। और इसमें जो भी आपको जैसे यूपीआई डेलीगेट्स करके आया हुआ है, यूपीआई के कई यूपीआई सर्कल आया हुआ है, इस तरह की कई चीजें आपको होती है। तो वो जो डेवलपमेंट्स होती है उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर मैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो क्या हो गया कि जो अभी क्या हो रहा है कि आपको ब्लॉकचेन कंसेप्ट आ रहा है, अभी एआई आ रहा है। तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, 4 प्रोज एंड 4 कॉन्स ऑफ एआई इन बैंकिंग सेक्टर। 10 मार्कर क्वेश्चन था ये। तो यही चीजें हैं कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आपको बैंकिंग सेक्टर में आती है, जो भी नया नया इनोवेशन आ रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो एक और चैप्टर है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज टू द लोअर पीपल, जहां पर कि जो अनबैंक्ड एरिया है, बैंकिंग टू द अनबैंक्ड, बेसिकली इट्स अ कांसेप्ट ऑफ बैंकिंग टू द अनबैंक्ड। तो उनके पास जो ये लेकर जाना, तो उस कंडीशन में 3 चीजें होती है, 3 पिलर्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंडिया में। ओके, इसी के अंतर्गत आपको इवन मुद्रा वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया, और जो आप देख सकते हो कि पेमेंट बैंक वगैरह को प्रमोट किया गया, दैट टू कम्स अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर बैंकिंग को जो है आपको गांव गांव तक जो है लेकर जाया गया। जो भी लोग बैंकिंग से जुड़े हुए नहीं थे उनके तक जो है बैंकिंग को पहुंचाया गया। तो यही चीजों को आपको समझना होता है कि आखिर सिलेबस है क्या। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल।
तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से मेजर, क्लाइमेट का इम्पैक्ट आपको काफी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण काफी इम्पैक्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर में, और साइबर जो है एक मेजर इशू हो रहा है। अब देख रहे हो बैंक फ्रॉड्स एंड ऑल जो है हैकिंग वगैरह के कारण साइबर, तो ये क्लाइमेट, साइबर एंड कॉन्फ्लिक्ट, दीज थ्री आर मेजर इशूज जिसके कारण से बैंकिंग पर जो है इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द होल फाइनेंस इकोनॉमिक्स सिलेबस टू द करंट सिनेरियो, टू द न्यूज़पेपर है, उससे आपको न्यूज वगैरह से जो अभी जो चल रहे हो उनसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, आपको लगेगा कि भाई क्या पूछ सकता है। बट अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो पूछ ही सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, और उसके लिए आप रेडी रहते हो, देन यू आर इन सिंक विद द एग्जामिनर। तो आई हैव समराइज ऑल दिस थिंग, सिलेबस आपको क्यूआरई में क्या करना है। ओके, तो पजल, सिटिंग रेमेन, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह आपको चाहिए। ओके, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। एंड गाइस, इन आवर कोर्सेज वी हैव प्रोवाइडेड एटलीस्ट 50 क्वेश्चन ईच ऑन दिस पजल, सिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब पर जो है क्वांट रीजनिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिया है। इस वीक से सेक्शनल टेस्ट भी आपका रीजनिंग और क्वांट का स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स, आपको करंट अफेयर्स का जो है 100 एमसीक्यूज हर मंथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको दी जा रही है जो आपके लिए जरूरत है, आपको एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो नाउ दिस इज द प्लान। मैंने यहाँ पर 16 जून मेंशन किया बिकॉज आई हैड क्रिएटेड दिस प्लान ऑन 16 जून, और उसी टाइम पर मैंने बैच 3 को जो है वो शेयर किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैच 3 जो है आप अब ज्वाइन नहीं कर सकते। बेसिकली ये बैचेज ऐसे होते हैं ना कि आप कभी भी ज्वाइन करके अपने सेल्फ पेस्ड होते हैं। ओके, जो बैचेज मैं रन करता हूँ ये सेल्फ पेस्ड बैच होते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाकर इन्हीं प्लान्स को मॉडिफाई करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो आप चल सकते हैं। और जब भी आपको कोई डाउट्स होता है, जब भी आपको किसी प्रकार के हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, वी कैन कनेक्ट ओवर कॉल, वी कैन कनेक्ट ओवर the video format also, we can connect over the chat box also। तो उसके माध्यम से हम लोग जो है डॉट्स को रिजॉल्व करके आपके प्रिपरेशन में सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरा प्लान है, 16 जून से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको वीकली फॉर्मेट दिया हुआ है, और हर वीक में आपको जो है एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। जो भी आप पढ़ोगे उस पर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका वीक 1 का प्लान है। मैंने ये कंसिडर किया है, इस तरह से दिया है कि रिवीजन जितना आपको 3 घंटे लगता है, एक चैप्टर को 4 घंटे लगता है रिवाइज करने में, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया हुआ है, ताकि उसका प्रॉपरली हर चीज को रिवाइज कर सको। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इवन मैंने आपको देखो पीआईबी मैगजीन्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, हर चीज को 4 भागों में मैंने पूरा चीज को बांटा हुआ है। फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स कंपेडियम। अब देखो इकोनॉमिक्स एंड सोशलिज्म आखिर पूछता क्या है। आप बोलोगे सर जब स्टैटिक नहीं पूछता है फिर पूछता क्या है? पूछता है, अगर मैं ईएसआई के पूरे ईएसआई को मैं डिवाइड कर दूं तो यहां पर मेजरली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं स्कीम्स के। ओके, ये स्कीम से रहेगा। रिपोर्ट्स रहता है, एक जरूर पैराग्राफ आपको रिपोर्ट से रहता है। फिर उसके अलावा कुछ आपको आरबीआई बैंकिंग के सर्कुलर्स वगैरह, चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपके सिलेबस में, तो आरबीआई के सर्कुलर पर कुछ क्वेश्चंस रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी वाले सर्कुलर वगैरह पर आपको क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस रहते हैं स्कीम्स के, जैसे कि इसके अलावा आपको जो है आरबीआई से भी दोनों डाल दो यहाँ पर। फिर कुछ करंट अफेयर्स में भी और भी जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ वगैरह से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक वाले से। ओके, तो यही चीजों से मिक्स अप जो है वो आपको ईएसआई का सिलेबस बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आपको स्कीम्स कंपेडियम दूंगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने कोर्सेज में। इसमें आपको 1 जून 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक पूरे एक साल में जितने भी प्रोग्राम्स नए नए लॉन्च हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स मेजर, उसका एक आपको कंप्लीट कंपेडियम जो है अराउंड 75 to 80 पेजेस का मिलता है। दैट कंपेडियम बेसिकली प्रोवाइड्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाय गोइंग थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट गवर्नमेंट लॉन्चेज, जो गाइडलाइंस पीडीएफ वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उसको फॉलो करके ये बनाया जाता है। और उसके माध्यम से कहते हैं कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स वगैरह को फॉलो करके बनाते हैं, डायरेक्टली पीआईबी नहीं फॉलो करते हैं सिर्फ,
और जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं उसको फॉलो करके बनाया जाता है, सो दैट एनीथिंग दैट दे आस्क यू दैट यू विल ऑलरेडी नो। ओके, उसको आपने पढ़ा होगा, वो चीजों को अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो वो आपका मदद करता है। उसके अलावा एग्जाम से पहले आपको रिपोर्ट्स कंपेडियम प्रोवाइड करता हूं, जिसमें जो जनवरी से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे बड़े बड़े, चाहे वो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हो, WTO के हो, वर्ल्ड बैंक के हो, IMF के हो, अंकटाड के हो, RBI के हो, या जो भी मेजर नीति आयोग के हो, जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो 7 रिपोर्ट्स ऑलरेडी RBI ने नोटिफिकेशंस में ही मेंशन कर रखा है, वो सब का जो है आपको पूरा कंपेडियम प्रोवाइड किया जाता है, समरी प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट एनीथिंग दे आस्क यू इन रिपोर्ट्स यू शुड बी नोइंग ऑल दोज थिंग्स। उसके बारे में ऑलरेडी आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होगा। और ऐसा नहीं है कि ये तब क्रिएट, वो रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। ये चीजें ऑलरेडी आपको मंथली बेसिस पर, चाहे वो स्कीम्स हो, उसको हम लोग PIB मैगजीन के थ्रू कवर कर रहे हैं। RBI सर्कुलर्स भी आपको PIB मैगजीन में मिल रहे हैं। आपको रिपोर्ट्स ऑलरेडी कवर किया जा रहा है। जितने भी बैंकिंग करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है, वो ऑलरेडी आपको मैं मंथली बेसिस पर कवर कर रहा हूँ। ये कंपेडियम एक तरह से रिवीजन के लिए दिए जाते हैं, ताकि आपको एक जगह सारा इंफॉर्मेशन, आप 6 महीने का मैगजीन पढ़ने के बजाय एक PDF पढ़ो, एक नोट्स पढ़ो उसको, और वो जो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो जाए, ये उस पर्पस के लिए आपको शेयर किया जाता है। ओके, so all the supports are being provided in the course, so if you are interested you can join our program. Okay, and this is the whole plan. So मैं यहाँ पर आपको 2 वीक तक डिस्कस किया था, तो 3rd वीक जो है इस तरह से है, उसमें भी चैप्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। इवन मैंने QRE के लिए भी आपको जो चैप्टर दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या करना है। इसमें भी आप जितने अच्छे से टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ ऑल्सो अटेम्प्ट्स मेंस लेवल क्वेश्चंस ऑफ SBI PO APS PO रीजनिंग क्वांट इंग्लिश फ्रॉम गाइडली वगैरह सब कर सकते हैं, क्योंकि उनका सस्ता आता है। चाहे 499 में आपको ढेर सारा क्वेश्चंस का पैकेज मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखो, स्कीम्स कंपेडियम स्टार्ट हो चुका है, वो भी प्लान में इंक्लूडेड है। ओके, तो हर चीज को यहाँ पर कवर की गई है। तो आप ये एक्सेल सीट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और उसको आप फॉलो कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप मेरे प्रोग्राम्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या आप मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर लो, या आप जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मॉक टेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। So it's up to you. Link has been given in the description below.